So we are going to start with trigonometry and very slowly and steadily with complete basics, right? Is on. So whenever you will not understand anything, just let me know. Now for all practical purposes, now trigonometry actually is very large topic, which we normally start studying in 10th, 11th and 12th. However, as far as competitive exams, our agenda is restricted to basic understanding of trigonometry and questions based on heights and distances, because that is what you call as an application based questions. So that is where most of the focus lies. Of course, there are certain formulas, double angle, triple angle formula, sum and difference formula. If you can learn, that is fine. But by and large in CAT, I have not seen, questions on triple angle or double angle. But yes, one or two formulas, just like we studied in the previous chapter, coordinate geometry, difference between two angles, where we studied tan of a minus b is tan of a minus of tan b divided by 1 plus tan a tan b. ऐसे दो तीन formula हैं. Other than that, majorly it's heights and distances, right? So whenever we say we will be studying trigonometry, primarily we are talking about study of right angle triangles. Primarily, of course, it is a study of triangles, but fundamentally we are studying what we call as a right angle triangle. So in right angle triangle, there are, of course, in any triangle, there are three sides. So what do you mean by right angle triangle? We'll take that. Let's say this is a right angle triangle. We have A, B, C. This value is right angled at B, right? Now, out of these, one of the angle is 90 degree, obviously. So there are two remaining angles. Now, if you see, we are talking, let us say we are talking about angle C. Let us say this angle is theta. For this angle theta, BC will act as base, क्योंकि उसी की सपोर्ट से एंगल बना हुआ है. ये एंगल एक हाइपोटेन्यूज तो चाहिए ही चाहिए होगा, लेकिन दिस थीटा इज मेड ऑन द सपोर्ट ऑफ BC. Therefore, BC will be known as base. It will be known as base, or it is also known as adjacent side. इन दोनों नामों से जाना जाता है. अगर ये थीटा है तो इसका BC बेस होगा और AB क्या होगा? AC को हम परपेंडिकुलर भी बोलेंगे या ऑपोजिट साइड भी बोलेंगे. ठीक है. Now, if instead of, this being base, if this angle is theta, मान लेते हैं, इसको थीटा मान सकते हैं, ठीक है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है. उस वक्त बेस कौन सा हो जाएगा? Now this becomes base, or it becomes adjacent side. This will become, perpendicular or opposite side. Obviously, this will always remain hypotenuse, right? This will also remain hypotenuse. इसका मतलब जब हम बेस या परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये कोई सैक्रोसेंट या फिक्स्ड लाइन नहीं होती है. ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि हम किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं. समझ में आ रही बात? तो कई बार हमारे दिमाग में होता है परपेंडिकुलर यानी जो सीधी खड़ी है वही परपेंडिकुलर है, लेकिन वो इस बात पे डिपेंडेंट है थीटा कौन सा है. अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर है, और अगर थीटा ये है तो BC परपेंडिकुलर है. हाँ, जो दूर वाली साइड है वही परपेंडिकुलर होगी. एडजेसेंट कौन सी होगी? जो हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल बना रही है थीटा के लिए. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आनी है. नॉमेनक्लेचर है. ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर साइड, बेस और हाइपोटेन्यूज का हम परपेंडिकुलर ऑपोजिट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं और बेस और एडजेसेंट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. ठीक है. अब इन साइड्स की रेशियो का नाम दिया गया है. जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये तीन ही तो साइड है. किसी भी दो साइड को अगर अपन ले लें तो उसकी रेशियो बनाई जा सकती है. अपन AB ले सकते हैं, AB BC ले सकते हैं, AB AC ले सकते हैं, BC AC ले सकते हैं, BC AB ले सकते हैं. कोई भी दो रेशियो लिया जा सकता है. कोई भी दो लाइन लेंगे, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसको रेशियो बोलते हैं. उनका एक नाम होता है. जैसे कि अगर हम मान लेते हैं इसको थीटा माना है, और अगर हमने इसका रेशियो ले AB अपॉन AC लिया, हमने क्या रेशियो, हमने रैंडमली ले लिया AB अपॉन AC, तो इसको कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया, ये भी बोल सकते हैं. कुछ लोग इसको ये भी बोल सकते हैं मैंने ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया. समझ में? ऑपोजिट अपॉन ये हाइपोटेन्यूज.
समझ में आ रहा है? ए बी अपॉन ए सी। अब ये तीनों नाम बोले जा सकते हैं। इसका एक मैथमेटिकल नाम दिया गया है, उसको हम साइन थीटा के नाम से जानते हैं। तो साइन थीटा क्या है? एक तरह का नाम है। किसका नाम है? एक रेशियो का। कौन सी रेशियो? सामने वाली और हाइपोटेन्यूज। ये बात समझ में आती है? सामने वाली और हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से एक और नाम हो सकता है बीसी अपॉन एसी। इसको हम क्या बोलेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। इसका एक नाम है कॉस थीटा। इसका क्या नाम है? कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अब यहीं से हाइपोटेन्यूज वाली सारी साइड हो गई। अगर अपन ए बी अपॉन बी सी ले लें, ए बी अपॉन बी सी, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसको क्या बोलेंगे? ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं tan थीटा। इसको क्या बोलते हैं? tan थीटा। ठीक है, क्या हो गया? tan थीटा, ये नाम है इसका। लेकिन इस tan थीटा का एक और रिलेशन है। हमने क्या निकाला? ए बी अपॉन बेसी। ये मान लेते हैं मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लेते हैं मेरा सेकंड है। अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, क्या मतलब है? मान लो मैंने कहा ए बी अपॉन ए सी होल डिवाइडेड बाय बी सी अपॉन ए सी। कर सकता हूं मैं ऐसा? तो ए सी से ए सी कटेगा, लेकिन ए बी अपॉन ए सी क्या है? साइन थीटा। और बी सी अपॉन ए सी क्या है? कॉस थीटा। जब हम रेशियो लेंगे ए सी कटेगा, ये क्या बचेगा? ए बी अपॉन बी सी बचेगा, विच इज, लेकिन ए बी अपॉन बी सी तो tan थीटा है। इसलिए एक और फॉर्मूला आ जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। लेकिन ये हम प्राइमरी से भी निकाल सकते हैं कि ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। ये रेशियो का नाम याद होना चाहिए। लेकिन ये भी याद होना चाहिए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि ये इसका लॉजिक है। समझ में आ रहा है? ये देख सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, ये सिंपल है। उसी तरीके से इसका अगर हम उल्टा कर दें, उल्टा का मतलब मान लो मैंने ए सी अपॉन ए बी कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड। इसको हम बोल सकते हैं, उल्टा कर दिया तो 1 बाय साइन थीटा बोल सकते हैं इसको। इसको बोलते हैं कोसिकेंट थीटा या कोसेक थीटा। तो 1 बाय साइन थीटा का नाम क्या हो गया? और 1 बाय साइन थीटा क्या हुआ? उल्टा। ये नॉमेनक्लेचर है, ये रेशियो का नाम है। ऐसे ही अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये बनेगा ए सी अपॉन बी सी। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा, या एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज 1 बाय कॉस थीटा, इसको बोलते हैं सीकेंट थीटा। ऐसे ही अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, तो एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड, ये बनेगा 1 बाय tan थीटा। और इसको बोलेंगे को टेंजेंट या कॉट थीटा बोलते हैं शॉर्टकट में। ये नाम है ट्रिग्नोमेट्री के, ये नामकरण है और कुछ नहीं है। रेशियो का नाम दिया गया है, क्यों है? बस नाम है, ये याद रखना है। साइन किसको बोलते हैं? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज को। कॉस किसको बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज को। टैन किसको बोलते हैं? ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड को। ऐसे ही कॉट किसको बोलते हैं? 1 बाय टैन को। सीकेंट किसको बोलते हैं? 1 बाय कॉस को। कोसिकेंट किसको बोलते हैं? 1 बाय साइन को। समझ में आ रहा है? ये सब इंटरडिपेंडेंट है, ये इनका नाम है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो प्रॉब्लम। ठीक, अब इसको, इसके बाद इसमें ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं जो हमें रट्टा मारनी होती हैं। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं जो याद करते हैं। ठीक है, प्लस इसको भी कईयों ने याद का फॉर्मूला बनाया होता है, पता नहीं वो बद्रीनाथ पंडित, हाँ पंडित क्या, बद्रीनाथ हरबर बोले सोना चांदी जो भी है। हाँ हाँ, बस ये सब नहीं करना है, याद होना चाहिए, काम कर रहा मैं। स्क्रीन विजिबल नहीं है?
ऐसा तो नहीं है, मैंने स्क्रीन तो शेयर करी है। पहले तो नहीं, पुरानी तो नहीं है चैट। अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को? नहीं दिख? इज द स्क्रीन विजिबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो फिर ये पहले की है। मुस्कान स्क्रीन दिख रही है? नो सर। नो। फिर वो ना तुम्हारा वाले में ही कोई चक्कर पड़ेगा सिस्टम में, बाकियों को तो दिख रही है, यहाँ से स्क्रीन शेयर्ड है। ऋषिका, यश, साहिल, तुम लोगों को? दिख रही है सर। मुस्कान एक बार देखो, कुछ तुम्हारा ना उसमें कुछ दब गया होगा या मिनिमाइज हो गई होगी स्क्रीन। ठीक है, ओके। तो ठीक है, ये याद रहेगा सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 and tan 90 1/0 अनडिफाइंड। इनफाइनाइट वाला वो टेंडिंग वाला। ठीक है, ये याद होना चाहिए। कैसे करते हैं याद? जो टेबल बनती है वो मैं बता देता हूँ। ऑफ कोर्स आई वांट यू टू एटलीस्ट नो दिस वैल्यूज। तो उसको याद करने का एक तरीका ये होता था कि हम यहाँ पे लिखते थे साइन, ठीक है, यहाँ लिखते हैं कॉस और यहाँ लिखते हैं टेन। ये मान लो हमें ये साइन 0 की वैल्यू है, ये 30 की वैल्यू है, ये 40 की, सॉरी 40 तो है नहीं, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90। तो सबसे तरीका क्या होता था, इसको लिखते थे 0 1 2 3 4। पहला स्टेप ये होता था 0 1 2 3 4। सेकेंड स्टेप, इसको डिवाइड बाय 4, इसको भी 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 डिवाइड बाय 4। स्टेप 2। थर्ड स्टेप, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट। 0/4 का अंडर रूट क्या होता है? 0/4 का अंडर रूट 0। 1/4 का अंडर रूट क्या होता है? 1/2। 2/4 का अंडर रूट क्या होता है? 1/√2। 3 ये क्या बनेगा? √3/2। और ये क्या बनेगा? 1। इसका मतलब है साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है। साइन 0 साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब जो ये जिस तरीके से क्या है, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, इसको रिवर्स करके लिख देते हैं। जो इधर वाली वैल्यूज है वो इधर में लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0, उसके बाद क्या आएगा? √3/2। उल्टा लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऐसे लिख रहे हैं। और ये इसके नीचे तो इंसिडेंटली यही आ गया, कोई बात नहीं, फिर ये आ जाएगा 1/2 और फिर ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा? कॉस। अच्छा, tan की वैल्यू होती है 1/sin, साइन बाय कॉस। तो ये बनेगा 0/1 विच इज 0। ये बनेगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये कटेगा 1/√3। ये बनेगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये बनेगा 1। और ये बनेगा √3/2/1/2, ये बनेगा √3 और ये बनेगा 1/0। ठीक है, तो ये है 0/1, 1/2/√3
√3/2, ये है 1/√2 अपॉन 1/√2, और ये है √3/2 अपॉन 1/2, तो कट के रूट। ये याद करना है अपने को, sin 0 cos 0 tan 0, sin 30 cos 30 tan 30, ठीक है। ऐसे ही 45 का, 60 का, 90 का। अब अगर आपको sin 0 की वैल्यू पता है तो कोसिकेंट 0 भी पता ही होगा, क्योंकि वो उसका रिवर्स है। sin 30 पता है तो कोसिकेंट 30 भी पता होगा, sin 45 पता है तो कोसिकेंट 45 भी पता होगा, और sin 90 पता तो कोसिकेंट 90 भी पता होगा। इसी लॉजिक से cos 0 अगर 1 है तो सीकेंट 0 भी 1 हो जाएगा। cos 30 अगर √3/2 है तो सीकेंट 30 2/√3 हो जाएगा। cos 45 1/√2 है तो सीकेंट 45 √2 हो जाएगा। cos 60 1/√2 है, 1/2 है तो सीकेंट 60 2 हो जाएगा। cos 90 0 है तो सीकेंट 90 1/0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही हमने साइन और कॉस का रिवर्स किया है, वैसे ही tan का भी रिवर्स करेंगे। tan 0 0 है तो cot 0 1/0 हो जाएगा। tan 30 1/√3 है तो cot 30 √3/1 हो जाएगा। tan 45 1 है तो cot 45 भी 1 ही हो जाएगा। tan 60 √3 है तो cot 60 1/√3 हो जाएगा। tan 90 1/0 है तो cot 90 0 हो जाएगा। इस तरीके से साइन कॉस tan की 0 30 45 60 और 90 की वैल्यूज और उनकी रिवर्स की वैल्यूज हमें याद करनी होती है। मेकिंग सेंस ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं यहां से सभी को? हाँ जी, ऑनलाइन, एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? याद आ रहा है कुछ कुछ? ये सब कुछ हमने कभी कभी पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर हम देखते हैं सबसे बेसिक फॉर्मूला, वो ये। मान लेते हैं, मैं इसको 1 मिनट के लिए अब हमने एक चीज पढ़ी है, इसको हटा ही दे। हमें पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों, कैसे पता? ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, कैन आई डिवाइड ऑन बोथ द साइड्स बाय AC स्क्वायर? विल इट इफेक्ट माय इक्वेशन इन एनी वेज? नो। ओके, दिस AC square get cancelled, this becomes 1 upon AB upon AC का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं ऐसा, प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके का? नहीं है ना। अब AB अपॉन AC की क्या वैल्यू थी? AB अपॉन AC क्या है? तो कैन आई से 1 इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC क्या है? कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब जनरली साइन थीटा का होल स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज, जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यानी साइन थीटा स्क्वायर इज सेम एज साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या मिल गया, क्या रिजल्ट आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। कहां से आ रहा है ये? पाइथागोरस थ्योरम से, और तो कुछ नया तो नहीं है इसमें। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 भी 1 बनेगा, साइन स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 40, मतलब साइन का थीटा कोई भी एंगल हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज बी 1। यहीं से मेन फॉर्मूला तो हमारा यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हम ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ले आएंगे। यहीं से आप ये भी कह सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन। अगर मुझे साइन का डेटा दिया है, कॉस में निकालना है, तो मैं कर सकता हूँ। कॉस की वैल्यू दी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, मैं तो भी कर सकता हूँ। बट ये कोई नई चीज तो है नहीं, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से ही निकल के आ रही है। बस उसी में हमने वो जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमने किया था, एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई डी निकालते हैं, वहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई टी निकालते हैं। यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा। किताब में इसको एक और फॉर्मूला दिया गया होगा, इसी को थोड़ा बेटर करने के लिए उन्होंने ये लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट कोई याद करने की जरूरत है इस चीज को? जब साइन थीटा आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, तो साइन थीटा की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। ऐसे ही आपको कॉस थीटा दिया होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बस ऐसे दिया है और हमें इसका कुछ नहीं करना। मेन हमारा ये येलो वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद ये 3 फॉर्मूले उसी के एक्सटेंशन और रीअरेंजमेंट है, तो कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है। ये याद रहेगा, ये बेसिक्स सबसे सिंपल है। अच्छा, अब जैसे हमने हमारा वंस अगेन हम इसी पे आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे ही आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही बोलता है। मैंने पहले AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, मैं अगर इसको AB स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अलग अलग करूं या ओवरऑल एक लाइन के करूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने वो एक स्टेप, बस ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप मैं खा गया कम लाइन करने के लिए। अब AC दिस कैन बी टेकन एज AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसा, इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB का स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूं मैं। बट AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, देखो यहां पे AB अपॉन AC है, AB अपॉन AC साइन थीटा है, हमें क्या चाहिए इसका उल्टा, तो क्या बनेगा कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB, क्या है BC अपॉन AB, देखो BC अपॉन AB, tan कहां गया, अच्छा हटा दिया, tan थीटा इज ये cot थीटा बनेगा 1 बाय tan थीटा, cot स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? cot कहां से आया, यहां से आया। देखो tan की वैल्यू है AB अपॉन BC, हमें चाहिए BC अपॉन AB, तो उसका इसका उल्टा चाहिए। तो ये एक और फॉर्मूला होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये एक फॉर्मूला है, लेकिन इसको क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका क्या, इसका रिजल्टेंट क्या है? इसका रिजल्टेंट ये है कि हम इसको लिखते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। कहना ही से एक तो रिजल्ट यही हो गया, दूसरा उसी का एप्लीकेशन हो गया, मतलब इसी का डेरिवेशन है, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नजर आ रहा है, कैन आई राइट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब होगा क्या, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से क्या रिजल्ट आएगा, यहां से आएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये वाला रिजल्ट आपको एग्जाम में यूज होता है काफी हद तक, ये वाला, ये है कुछ नहीं। कैसे यूज होगा, अगर मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 3/4 है, मान लेते हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 4/3 होगी, बस और कुछ नहीं होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये आ कहां से रहा है, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम से। जब हम AC से डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरा एक फॉर्मूला मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां से हम रीअरेंज करके 2 और फॉर्मूले निकाल रहे हैं। उसी तरीके से जब हम AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, CC है ना, याद रखना CC, कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसी लॉजिक से हम एक और निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताओ,
सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी करते हैं। देखो वंस अगेन अपन बेसिक फॉर्मूला अपना लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम यहाँ पे AB से डिवाइड करेंगे, अब हम किससे करेंगे? BC से। तो इसको BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसको BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसको BC स्क्वायर से। दिस इंप्लाइज AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1। नाउ व्हाट इज AC अपॉन BC? देखो AC अपॉन BC डायरेक्टली दिख रहा है, विच इज सीकेंट। तो हम इसको लिखेंगे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस AB अपॉन BC। देखो क्या है? AB अपॉन BC क्या है? टेंजेंट। तो ये बनेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अपने आप में ये एक रिजल्ट है मेरा, सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसी को हम फर्दर थोड़ा सा एनहेंस करते हैं। क्या करते हैं? हम बोलते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। ये भी अपने आप में रिजल्ट है, बट दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो आई कैन ऑलवेज राइट इट एज सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा into secant theta minus tan theta is equal to 1. So I will have secant theta minus tan theta is given as 1 by secant theta plus tan theta, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, secant theta plus tan theta is equal to 1 minus secant theta tan theta. Once again, a question can be given to you is that secant theta plus tan theta is equal to 4. So we know that secant theta minus tan theta will be 1 by 4. So this is once again a standard result which you are using in the examination. इसको समझ लो, स्लो करना है और इससे स्लो नहीं हो, मतलब कर दूंगा बट ओके, आई वांट यू टू जस्ट एब्जॉर्ब इट। तो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है देख लो, लेकिन याद होना चाहिए। So sin square theta plus cos square theta is 1. So वहां से 1 minus sin square theta is cos square theta. 1 minus cos square theta will be sin square theta. यहाँ से आएगा हमारा 1 plus tan square theta can be taken as secant square theta. Important result ये है कि secant theta plus tan theta is given as 1 by secant theta minus tan theta. उसी तरीके से जो important result है वो ये है cosecant theta minus cot theta can be taken as 1 by cosecant theta plus cot theta. ये दोनों इंपॉर्टेंट इसके रिजल्ट्स हैं। तो एक रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये हमारी जो कुछ वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो बेसिक डेफिनेशन है साइन कॉस टैन सीकेंट कोसीकेंट एंड कॉट, ये रेसिप्रोकल का मतलब है। ये बेसिक हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो तो यही है। इसके बाद एक दो फॉर्मूले हैं विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद राइट एंगल ट्राइंगल्स, but then it is given to us in terms of as a part of trigonometry that we need to study. So let's say I have a triangle A B C. This is A, this is B, this is C, right? There is something known as a sine rule which says A by sine of A is equal to B by sine of B is equal to C by sine of C, which is equal to 2R. ये एक रेशियो होता है, यानी लेंथ, या फिर ये भी कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द साइड्स आर इन द सेम रेशियो ऑफ द साइन ऑफ देयर एंगल्स। ये भी एक रिजल्ट होता है, यानी अगर A is to B is to C निकालेंगे उसका जो रेशियो होगा वो साइन ऑफ एंगल A is to साइन ऑफ एंगल B is to साइन ऑफ एंगल C होगा, क्योंकि 2R तो कांस्टेंट है। R की वैल्यू समझते हो? व्हाट इज कैपिटल R? सर्कम रेडियस। कैपिटल R इज सर्कम। वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से वर्टेक्स पे जो लाइन जाती है उसको हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमने ये एक लाइन बनाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है,
तो तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहीं से पास करेगा। इसको क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर से अगर हम एक वर्टेक्स पे बनाएंगे तो ये जो होता है ये क्या होता है? इसको कैपिटल आर बोलते हैं। अगर इसको कैपिटल आर को यूज करके अगर अपन एक सर्कल बनाएंगे तो वो तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। इसको सरकम सर्कल बोलते हैं, याद है? तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कैपिटल आर की वैल्यू होती है वो प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड्स बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये आर वही है। तो a बाय साइन इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c, साइन रूल बोलते हैं। इन अनदर वर्ड्स a is to b is to c will be same as sin of a is to sin of b is to sin of c, यानी रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द एंगल्स। तो ये भी एक हमारा इसी का पार्ट हो जाता है जो हमें याद करना होता है, एक साइन रूल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉस रूल। ठीक है, ये साइन रूल है, a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c इज इक्वल टू 2r। ये मेरा साइन रूल है। कॉस रूल क्या होता है? कॉस रूल इज अ मेथड टू कनेक्ट द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विद द एंगल। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, हमें तीनों साइड पता है और मुझे एंगल्स निकालने हैं। अगर तीनों साइड पता है और एंगल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये समझना है। हम ऐसे करेंगे, cos ऑफ a is given as b square plus c square minus a square upon 2bc। यानी अगर a b c तीनों साइड अपने को पता है तो अपन एंगल a निकाल सकते हैं। cos ऑफ a is b square plus c square minus a square upon 2bc। b c साइड है, कौन सी वाली माइनस करनी है साइड? जो एंगल निकालना है उसके सामने वाली साइड माइनस करनी है। और नीचे क्या आएगा? वो साइड आएगी जिसका एंगल नहीं चाहिए। इसी लॉजिक से cos b क्या होगा, सोच के बताओ? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। c स्क्वायर या a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे इसी लॉजिक से cos c की क्या वैल्यू होगी? स्क्वायर। यानी अगर हमें तीनों साइड्स पता है, जनरली जब कैट में अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो 60 डिग्री का एंगल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ और 2 कट जाता है, तो फिर ए बी सी में रिलेशन कुछ कुछ बन जाता है। इसलिए समझ में आ रहा है क्या क्यों ऐसा बनता है? इसलिए ऐसा बनता है। ये हमारा बनता है कॉस रूल। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब शुरू करें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा, जैसे किताब में दे रखी है। कौन सा वाला है? साइन है, अच्छा, साइन रूल बोलते हैं इसको। ये वाली साइड ए कहते हैं, कैपिटल साइड। इसकी वैल्यू ये लिखी है, डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला इस एंगल, ये एंगल है, इसका एंगल है। साइन ऑफ एंगल, अब साइन ऑफ एंगल क्या है? मान लो 30 है तो साइन 30, मान लो एंगल 45 डिग्री है तो साइन ऑफ 45 डिग्री। इन दोनों का जब रेशियो लिखेंगे ना, उसका रेशियो बराबर है, किसके बराबर है? बी इस साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बी, ये वाला साइड सामने वाला, उसका कुछ रेशियो आएगा। उसी तरीके से जो तीसरी वाली साइड है, मान लो अपन ये साइड लिख ली, वो साइड की वैल्यू यहां लिखी डिवाइडेड बाय ये वाला एंगल, तो इन तीनों का रेशियो सेम मिलेगा एक्चुअली। और वो किसके बराबर होगा? 2r। और r क्या है? सरकमरेट, जिसकी वैल्यू ये आती है। ठीक है, अब ये कहां से बनाया? मान लो मैंने जैसे ये लिखा है ना, ये कैसे बनाया? मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली जो वैल्यू है ये 2r के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या a की वैल्यू 2r साइन a लिख सकता हूं मैं, b की वैल्यू 2r साइन b लिख सकता हूं मैं, क्रॉस मल्टीपल, और c की वैल्यू कैपिटल ए क्या था? कैपिटल ए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकता हूं ऐसा। अब जब मैं लिखूंगा a इज टू b इज टू c, ठीक है,
ए की जगह मैं लिख सकता हूं 2r साइन ए लिख सकता हूं ए की जगह, बी की जगह लिख सकता हूं 2r साइन बी, और सी की जगह लिख सकता हूं 2r साइन सी लिख सकता हूं। जब a इज टू बी इज टू सी निकालूंगा तो इन तीनों का रेशियो निकालूंगा, तो चूंकि इसकी जगह लिख सकता हूं तो बराबर ही होगा, 2r कटेगा, तो a इज टू बी इज टू सी इज सेम एज साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी, 2r कट रहा है, ये इसका रिजल्ट है डायरेक्टली। इसको साइन रूल के नाम से जानते हैं, नीचे कॉस रूल है, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर जो मेरे ख्याल से किताब में अपने दिया हुआ है वो दिया हुआ है, पहले डिफाइन किया हुआ है रेडियन और डिग्री क्या होती है। जो हम पढ़ते हैं डिग्री, एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। और एक सर्कल, ये एक अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि हमारा एमके सिस्टम होता था, जैसे पाउंड होता है ना, केक हम किस में बोलते हैं, पाउंड में बोलते हैं, और लेकिन और बाकी सामान हम केजी में बोलते हैं। तो जो पाउंड वाला सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है, पाउंड या फिर ओजी जिसको आउंस, ये अलग सिस्टम है, वो अलग सिस्टम है। ऐसे ही इसके अंदर भी एक वो सेक्साडेसिमल सिस्टम शायद बोलते हैं उसको, और एक दूसरा वो अपना सर्कुलर सिस्टम है। तो ये दो अलग अलग सिस्टम है। तो एक सिस्टम में हम डिग्री लेते हैं और एक सिस्टम में हम रेडियन लेते हैं, ये नाम है मतलब अलग अलग है उसी चीज के। तो सर्कुलर में वो पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री माना गया है, और दूसरे वाले में इसको हमने पाई रेडियन माना है, पाई रेडियन। तो एक रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, कैसा डिफाइंड है एक रेडियन, एक रेडियन उसको बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मान लो अपना ये एक सर्कल है और ये मान लेते हैं इसका रेडियस है, या ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये जितना आर्क ये कर रही है ये भी 1 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है। तो ये जो एंगल बनाएगी ना उसको एक रेडियन बोलते हैं, ये एक रेडियन है, तीनों इक्वल है। यानी मान लो हमने 2 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाया है, तो 2 सेंटीमीटर का रेडियस जब 2 सेंटीमीटर के आर्क को कट करेगी तो कुछ तो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज डिफाइंड एज रेडियन, 1 रेडियन। अब वो किसी भी सर्कल की साइज हो सकता है भाई, 3 सेंटीमीटर का अगर रेडियस है तो 3 सेंटीमीटर का आर्क हमें कट करना है, उस आर्क कट करके जो सेंट्रल एंगल बनेगा ना, दैट इज डिफाइंड एज 1 रेडियन बेसिकली, दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं, एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं, विच इज इक्वल टू 360 डिग्रीज होता है। इसीलिए पाई रेडियंस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर आपने देखा होगा कई बार हम पाई बोलते हैं, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यही बोलते हैं ना। तो ये रेडियंस में है और ये डिग्रीज में। ऐसे अगर हम पाई बाई 3 ले लेते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, 60 डिग्री। पाई बाई 4 का क्या मतलब हो गया, 45 डिग्रीज। पाई बाई 6 का क्या मतलब होता है, 30 डिग्री। यही होता है, ये यूज करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कि ये वो है। बस इस टाइप से एक्सप्लेनेशन दे रखी है हमें स्टार्टिंग में कि रेडियन और डिग्री का फर्क क्या है। रेडियन की डेफिनेशन समझ में आ रही है कि जितना रेडियस होगा उतने ही लेंथ का जो आर्क काटेगी उसका जो सेंट्रल एंगल होगा वो एक रेडियन के एंगल के बराबर होता है। तो एक सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं और 360 डिग्री होता है, पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहां तक सबको आना चाहिए, ठीक। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा अलग होंगी, लेकिन उसके बाद फिर जब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आएगा तो वो सबको आना चाहिए। ये 2 तरह के क्वेश्चन थे एग्जाम्स में, खासतौर पे एंट्रेंस एग्जाम्स में। इन सबसे ज्यादा वैल्यू चीज होती है क्वेश्चंस सॉल्व करना जिसमें कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसके अलावा भी इसमें सम डिफरेंस के फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे कि साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस टाइप से फॉर्मूले किताब में लिखे होंगे, दिखाना है किताब, दिखाना मैं एक बार।
अच्छा अच्छा, अभी तो मैं एक तो चीज तो बताना भूल ही गया आपको। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आते हैं इस पे। सम डिफरेंस से पहले मैं आपको और भी कुछ वैल्यूज याद कराना चाहता हूं, कुछ और चीजें हैं। एंगल्स निकालना, एंगल्स की वैल्यूज निकालना। जैसे कि अभी हमने तो पढ़ा साइन 60, साइन 30, ऐसा सब पढ़ा। अगर कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए साइन 150, साइन 270, साइन 340, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मैं एक बार साइन का आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, साइन थीटा का, क्या नहीं, क्योंकि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना 1, ठीक है, एक लोब ऐसे बनेगा, ऐसे। समझ गया क्यों नहीं बना रहा था मैं ऊपर? क्यों, अपने को जरूरत नहीं है, ऐसे ठीक है। ये 0 है, ये π/2 है, 90 डिग्री है, ये पाई है 180 डिग्री। फिर ये कौन सा एंगल हो जाएगा? 3π/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2π। ठीक, अब एक चीज, और फिर यहाँ 2π से फिर ये π/2 ऐड हो जाएगा, समझ में आ रहा है? फिर ये 3π हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 4π हो जाएगा, यहाँ π/2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 + π/2 कितना बन जाएगा? 7π/2। ये क्या पॉइंट है? ये 7π/2 है। ये कितना है? 5π/2। समझ में आ रही बात? ये साइन का ग्राफ है, एक्चुअली ये साइन थीटा का ग्राफ है। अगर हम ध्यान से देखें तो 0 से लेके π/2 तक ये एक सिस्टम बनता है, 0 से लेके π/2 तक का ये सिस्टम है, ठीक है। जो डिजाइन 0 से π/2 है, एग्जैक्टली वही डिजाइन मेरा 2π से 4π है। अगर मैं इधर पीछे आ जाऊं तो 0 से लेके -2π तक वही डिजाइन बनेगा। इसका मतलब 0 से 2π, 0 से 2π, 0 से 2π, साइन का ग्राफ एकदम सेम है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है 2π के बाद ग्राफ रीसेट हो रहा है, रीडिजाइन हो रहा है, सेम सेम चीज आ रही है, बारी बारी रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं मेरे पास साइन ऑफ थीटा है, और मैंने कहा मुझे निकालना है साइन ऑफ 360 प्लस थीटा। जब हम थीटा बोलते हैं ना, तो थीटा का मतलब होता है एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। मतलब एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 के बीच में, 0 से 90। तो साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ 360 थीटा सेम ही आना चाहिए। मान लेते हैं मैंने कहा साइन ऑफ 45 डिग्री, तो साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री यहां पे आएगा। मैं इसको पेंसिल से बना देता हूं। ये साइन ऑफ 45 है, साइन ऑफ 45 की ये वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? 1/√, ये आएगी। अब मैं साइन ऑफ 360 + 45 करता हूं, मान लेते हैं। थ्री सिक्सटी यानी यहां पहुंच गया, और 45 फिर ये इसके बीच यही वाली आएगी लाइन। समझ में आ रहा है? 360, क्योंकि डिजाइन वापस ग्राफ वही हो गया। अगर अपन ये रेड वाला भूल जाएं तो फिर ये पॉइंट यहां आएगा 45, यानी ये अगर मान लो 0 है तो ये π/2 है, तो इसका 45 यहां आएगा, ये वर्टिकल लाइन बनेगी, और फिर इसकी वैल्यू यहीं पे मिलेगी। सेम ही वैल्यू आ रही है।
समझ में आ रहा है? एक और 360 करेंगे फिर सेम वैल्यू आएगी। इसका मतलब है साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ 360 प्लस थीटा हमेशा सेम ही आना है। नॉट जस्ट 360 प्लस थीटा, 720 प्लस थीटा भी वही आना है। नॉट मतलब इसका मतलब है कि अगर मैं साइन ऑफ थीटा की बात करूं, इट ऑलवेज साइन ऑफ n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, हमेशा ही सेम आंसर आएगा। मतलब एक 360 प्लस थीटा करोगे तो भी थीटा ही आ रहा है, 2 इंटू 360 यानी 720 प्लस थीटा करोगे तो भी थीटा ही आएगा। ठीक है, 360 इंटू 3 1080 प्लस थीटा करोगे तो भी सेम ही आएगा। किताब में इसको ऐसे लिखा जाता है, साइन ऑफ थीटा इज सेम एज साइन ऑफ 2 पाई n प्लस थीटा। इनफैक्ट प्लस माइनस थीटा लिखते हैं, मैं फिलहाल आपको प्लस थीटा लिखा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी साइन ऑफ 360 प्लस थीटा विल बी सेम एज साइन थीटा, सेम आंसर आएगा, कोई चक्कर नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे ही कॉस में भी सेम आएगा और टैन में भी सेम आएगा। एक तरीका है कि मैं तीनों का ग्राफ बना के बताऊं कि सेम डिजाइन रिपीट होएगा। दूसरा तरीका आप ग्राफ बना के देख लो, क्या करना चाहते हो। साइन ऑफ 360 प्लस थीटा सेम साइन थीटा आ रहा है इस लॉजिक से। ऐसे ही कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा क्या होगा, सेम ही आएगा। ऐसे ही टैन ऑफ 360 प्लस थीटा क्या होगा, सेम होगा। अगर साइन कॉस टैन सेम है तो उसका रेसिप्रोकल भी सेम होगा। समझ में आ रही बात? यानी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसमें 360 डिग्री ऐड कर दें। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज जो ग्राफ है वो सिर्फ शिफ्ट हो गया, उसका डिजाइन 360 डिग्री के बाद रिपीट होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, सर अब हाँ बोलो। सर 90 डिग्री के बाद कैसे वैल्यू निकालते हैं? 90 के बाद मतलब साइन 90 हाँ अभी जैसे अभी 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 करेंगे, अभी करेंगे, चिंता ना करो, अभी अभी बहुत कुछ करना है, एक एक करके करते हैं। साइन 90 भी देखेंगे, साइन 270 भी देखेंगे, वो सारा देखेंगे। ठीक है, अभी हम एक बार 360 समझना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी मैं 360 के बाद एक बार साइन ऑफ 180 समझ आता हूं आपको। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा भी हो सकता है और माइनस थीटा भी होता है। इसका आंसर जो आएगा या तो प्लस आएगा या माइनस, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा ये देखो। 180 का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक ऊपर की तरफ, और 180 के बाद क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ। कहना इसे सिर्फ आंसर नेगेटिव होगा, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। कहने का मतलब है, मान लेते हैं 180 से हम 30 डिग्री पहले ले लें, माइनस ले लें, 30 डिग्री पहले ले लें, ये यहां पे आएगी मान लेते हैं वैल्यू, तो ये आंसर होगा इसका। और अगर 30 डिग्री बाद में ले लें तो यहां पे आएगी वैल्यू, उसका आंसर ये होगा। अब देखो दोनों का जो यहां से गैप है वो तो सेम है, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, इतनी सी कहानी है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने कहा आपको साइन ऑफ 180 माइनस 60, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 60। प्लस आएगा माइनस मुझे पता नहीं, अभी बताऊंगा। या फिर मैंने कहा साइन ऑफ 180 प्लस 60, तो भी कुछ तो आंसर आएगा, लेकिन आंसर साइन ऑफ 60 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 180 में से 60 कम किया तो इधर जाएगा, ऊपर वाला आंसर आएगा, और 180 में 60 ऐड किया तो नीचे वाला आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन वाई एक्सिस पे जो दूरी है वो तो यहां से यहां जो हाइट है और यहां से यहां जो हाइट है वो तो सेम हो रही है। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? अभी तो आ रहा है, चल ठीक से रिकॉर्ड भी हो रहा है, दोबारा भी आ जाएगा। मोटी बात समझाना चाह रहा हूं वो ये, साइन ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या हो रहा है, डिजाइन ऊपर वाला नीचे आ रहा है, यानी प्लस माइनस होएगा। लेकिन साइन ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा, नो चेंज। कॉस ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा ओनली, प्लस माइनस कॉस थीटा। तो मोटी मोटी बात में जो समझाना चाह रहा हूं वो ये, साइन ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा is given as plus minus sin theta.
360 में भी प्लस माइनस आएगा, क्योंकि माइनस करेंगे ना तो 360 फंक्शन मतलब क्वाड्रेटिक नेगेटिव आ जाएगा बस, लेकिन फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, प्लस माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही tan ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा इज गिवन एज प्लस माइनस tan थीटा। इसका रिवर्स कर दें तो बात बराबर है। साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसिकेंट। कोसिकेंट ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा कितना होगा? प्लस माइनस कोसिकेंट थीटा। सीकेंट ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा कितना होगा? प्लस माइनस सीकेंट थीटा। है जो एग्जैक्ट आएगा वो मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल मैं इतना बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन चेंज होगा। समझ में आ रहा है? अब क्या साइन आएगा वो कैसे पता चलेगा वो सिखाऊंगा अभी। समझ में आ रहा है? अभी क्या साइन लगेगा, मतलब अगर मैं साइन ऑफ 120 करता हूं तो क्या बनेगा वो? 180 माइनस 60। समझ में आ रहा है? ओके, अब इतना तो पता है, साइन ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा आएगा, कॉस ऑफ 180 प्लस माइनस कॉस थीटा। लेकिन प्लस आएगा या माइनस ये कैसे पता चले? यही प्रॉब्लम है ना। अगर ये पता लग गया तो हम सारे आंसर निकाल पाएंगे। देखो, इसको पता करने का ये तरीका, इसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स यानी चौथाई हिस्सा, क्वार्टर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हमने स्कूल में कुछ सीखा था, जैसे बद्रीनाथ प्रसाद चॉकलेट वॉकलेट जो भी सीखी थी, इसमें भी कुछ सीखा था। ना ना ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी। एड शुगर टू कॉफी, नहीं याद है? चलो, कुछ नहीं याद आ रहा। वो जो प्लस 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 माइनस होता है वो तो तुम्हारा नंबर सिस्टम का है ना, कि भाई ये एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्सिस पॉजिटिव, तो राइट वाली वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, या एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। हाँ, ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, कहां से लेके 0 से लेके 90 तक। इसका मतलब अभी अपन ने सारे फंक्शन निकाल के देखे थे, इसमें किसी का आंसर नेगेटिव आया था? क्योंकि ये सारे कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सारे कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब मान लेते हैं मैंने एक एंगल लिया साइन ऑफ 120, ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? क्योंकि ये 90 से 180 है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, अगर मैंने बोला कि कॉस ऑफ 120 का आंसर बताओ, ये किसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के अलावा सारी वैल्यू नेगेटिव है। क्योंकि साइन पॉजिटिव है, सीकेंट भी पॉजिटिव, कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। कॉस 120 नेगेटिव है तो सीकेंट 120 भी नेगेटिव होगा। tan 120 कितना होगा? नेगेटिव होगा। तो cot 120 कितना होगा? नेगेटिव। ये बात समझ में आती? पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं साइन 120 को साइन ऑफ 180 माइनस 60 कर दूं, इसका आंसर मुझे पता है क्या आना है। एक तो क्योंकि 180 में कुछ जोड़ोगे घटाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन क्या लगाऊं? प्लस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर साइन यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। हाँ, साइन ऑफ 120 की वैल्यू आ रही है साइन 60 विच इज √3/2। ये सीधा आंसर आएगा। कैसे? साइन 120 चाहिए तो 120 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव लगा दो। अब चूंकि 180 प्लस माइनस थीटा में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 120 माइनस 60 क्या बन जाएगा? साइन 60। अच्छा, मान लेते हैं हमें cos 120 निकालना है, तो cos 120 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 60। cos रहेगा तो cos ही, लेकिन क्या है, प्लस लिखूं या माइनस?
माइनस विच इज माइनस हाफ, यानी कि cos 120 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस हाफ। क्यों? cos 60 की वैल्यू हाफ होती है और माइनस साइन आएगा। ऐसे ही मान लो मैंने कहा मुझे tan 120 कितना होगा? tan 180 माइनस 60 विच इज tan 60। बट व्हाट 120 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर आएगा माइनस tan 60। माइनस tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी कि tan 120 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस √3। माइनस में आएगी, लेकिन tan 90 प्लस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा cot थीटा में, वो बताऊंगा अभी क्यों। सर अच्छा, आंसर जो साइन है वो बिल्कुल सही पकड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। cos 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस। क्या आएगा वो बाद की बात है। उसी तरीके से tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस होगा। समझ में आ रहा है? उसी लॉजिक से अगर मैं बोलूं sin 90 माइनस थीटा, जो भी आएगा वो बाद में देखेंगे, आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। cos 90 माइनस थीटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। cot 90 माइनस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। cos ऑफ 90 प्लस थीटा क्या आएगा? नेगेटिव। tan ऑफ 90 प्लस थीटा क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अब अगर तुम्हें कुछ समझ में आया तो मुझे बताना। तुम साइन ऑफ 90 नहीं 180 प्लस थीटा, मुझे आंसर बताओ। माइनस, यहां क्या आएगा? समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव। लेकिन अगर मैंने साइन ऑफ 180 माइनस थीटा किया तो प्लस साइन थीटा, इसीलिए मैंने 180 प्लस माइनस में प्लस माइनस लिखा था। अच्छा, मुझे ये बताओ कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या बनेगा? माइनस कॉस थीटा। अच्छा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा क्या बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, थर्ड में पॉजिटिव क्या है? माइनस कॉस थीटा। tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस tan थीटा। tan ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होगा? ये प्लस tan थीटा, क्योंकि 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, और चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगी तो ये सारे रिजल्ट हैं। जो साइन के हैं वही कोसिकेंट का होगा, जो कॉस का है वो सीकेंट का होगा, जो tan का है वो कॉट का होगा। बस ये दो चीजें समझनी है। 180 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। प्लस होगा या माइनस ये कैसे डिपेंड करेगा? वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। और कुछ नहीं करना अपने को। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, चूंकि हम ये कर रहे हैं प्लस माइनस की ही, मुझे बताओ, मान लो मैंने कहा साइन ऑफ 270 माइनस थीटा क्या आएगा? वो मुझे पता नहीं, वो एक्चुअली साइन का कॉस में कन्वर्ट होता है। बट आंसर बताओ, नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में? माइनस साइन कॉस आएगा। जब 180 प्लस माइनस थीटा करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन जब 90 या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 या ऑड मल्टी यानी 180, क्योंकि इवन मल्टीपल तो 180 हो गया, फिर इंटू 3 करेंगे 270, इंटू 4 करेंगे 360, तो 90 में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 करेंगे तो कन्वर्ट होएगा। साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन, साइन tan विल कन्वर्ट इनटू कॉट, कॉट विल कन्वर्ट इनटू tan, सीकेंट विल कन्वर्ट इनटू कोसिकेंट। वो बात अभी बताऊंगा फिर से, लेकिन हम साइन पढ़ना चाहते हैं, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में? ये थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, ये भी माइनस आएगा, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में? ये
फोर्थ, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। tan ऑफ 270 माइनस थीटा, क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में। tan ऑफ 270 माइनस थीटा, अच्छा प्लस कर लो क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है? एड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे भी याद रहे, ए एड सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एड शुगर, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में tan, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ठीक है, अब एक चीज और मुझे बताओ, अब ये आंसर बताना है सीधा। साइन ऑफ 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि 180 के इवन मल्टीपल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। अब चूंकि साइन 360 माइनस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में साइन क्या हो गया? नेगेटिव। ऐसे ही कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, tan ऑफ 360 माइनस थीटा माइनस tan, प्लस थीटा कर लो, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर सेम आएगा, अभी करवाऊंगा। हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फेस चेंज होगा, वैल्यू सेम आएगी, आनी भी चाहिए। अब एक चीज और सिखा देता हूं, जैसे क्या है, मान लो ये मैंने एंगल बना लिया, नॉर्मली ये वाला एंगल है, मान लेते हैं ये मेरा यहां से यहां तक एंगल कितना है, मान लो 300 डिग्री है, ये 300 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। इसको -60 भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंटी उल्टा चल रहा है ना। अगर ये 360 है तो ये -60 है, कहीं कहीं इसको माइनस थीटा बोला जाता है, अगर समझ में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए आप कई बार किताबों में देखोगे साइन ऑफ माइनस थीटा इज टेकन एज, बताओ क्या होना चाहिए? माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। साइन कौन से क्या होएगा? माइनस, तो इसको माइनस साइन थीटा लिखते हैं। लेकिन जब हम कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखते हैं तो इसको प्लस ही लिखते हैं, क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, इसलिए ध्यान रखना। साइन ऑफ -60 डिग्री इज माइनस साइन 60, बट कॉस ऑफ -60 इज प्लस कॉस 60। अजीब सी बात है क्या? अजीब कुछ नहीं, अजीब क्या है? वो फोर्थ, माइनस का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी लॉजिक से tan ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस tan थीटा हो जाएगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आ रही बात? तो जब हम 180 या इवन मल्टीपल ऑफ 180 में प्लस माइनस थीटा करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। हमें यह देखना है कि वो एंगल 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है और किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। 180 माइनस थीटा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, उसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। 180 प्लस थीटा हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, उसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये बात समझ में आती है सभी को? ठीक है, स्पीड ठीक है, चल रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? शुड नॉट बी प्रॉब्लम नाउ। अब 90 वाले पे आते हैं। साइन 90 मैंने कहा था, देखो 90 माइनस थीटा मैंने कुछ नहीं किया ना यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर तो पॉजिटिव आएगा। साइन 90 माइनस थीटा इज गिवन एज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज गिवन एज साइन थीटा, cot 90 minus theta is given as tan theta. ऐसे secant 90 minus theta will be given as cosecant theta. Cosecant 90 minus theta will be given as secant theta. समझ में आ रहा है? tan 90 minus theta would be given as cot theta. ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ 90 के लिए नहीं है, किसके लिए है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, यानी 270 प्लस माइनस थीटा करेंगे। क्या करेंगे? मान लेते हैं, हाँ जैसे 270 माइनस थीटा है, अब हमें पता है माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है?
270, ये 270, ये 270 होता है माइनस थीटा। कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, आंसर तो ये आएगा। लेकिन जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू तो इस साइन विल बिकम कॉस, इसका रिजल्ट ये है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमें निकालना है साइन ऑफ 240 निकालना है, हमें साइन की क्या वैल्यू चाहिए 240। अब हमें पता तो नहीं साइन 240। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 270 माइनस 30। अब ये कन्वर्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं, पहले एंगल देखना है, कौन से एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में साइन क्या होगा नेगेटिव। बट चूंकि 90 का मल्टीपल है तो ये कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस 30। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो साइन 240 का आंसर आएगा -√3/2। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि वो बोलेगा कि सर मेरे को 270 के चक्कर में नहीं पड़ना, इसको आप लिखो साइन ऑफ 180 + 60, ये भी तो लिख सकते हो, तो भी तो 240 बनेगा। समझ में आ रहा है, साइन ऑफ 180 + 60, यही पूछ रहा था ना भाई। देख अब साइन है, पहले तो हम निकालेंगे एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल, और साइन निकालना है तो क्या होगा नेगेटिव, ये तो कंफर्म हो गया। चूंकि 180 है तो साइन तो चेंज नहीं होगा, साइन क्या लिखूं मैं, साइन 60, थीटा है ना, साइन 60 लिखूंगा। माइनस साइन 60 की वैल्यू चाहे आप कॉस में कन्वर्ट करो या साइन में, आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि एंगल तो वही है। आप 270 में प्लस करोगे या 270 में माइनस करो या 180 में प्लस करो, फाइनल रिजल्ट सेम आना चाहिए, सेम आएगा। इस तरीके से हम हायर डिग्री एंगल को निकालते हैं। कुछ पल्ले पड़ रही है कहानी। ऐसे ही साइन 270 + थीटा क्या बनेगा माइनस, क्यों, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में नेगेटिव, साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस। कॉस 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड, तो नेगेटिव आएगा, लेकिन क्या किस में कन्वर्ट होगा, साइन। 270 + थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा साइन। tan क्या बन जाएगा कॉट, लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि 270 माइनस थीटा है, और ये tan 270 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, अब 90 + थीटा निकालते हैं सारे। साइन ऑफ 90 + थीटा, मान लो इसको आंसर चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव है ना। अब चेंज करूं या ना करूं, इसको चेंज हो, क्या लिखूं कॉस थीटा। एग्जाम्पल मान लो अपने को साइन ऑफ 120 चाहिए, इसको ऐसे लिखो कि साइन ऑफ 90 + 30 लिख सकते हो, आंसर तो आएगा पॉजिटिव, साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस 30, इसका आंसर आएगा √3/2। तरीका नंबर 1। किसी ने कहा सर मैं तो 120 को ऐसे लिखना चाहता हूं, 180 - 30 लिखना चाहता हूं, चलेगा, ये भी चलेगा। 60, 180 - 60, तो साइन चूंकि सेकंड है तो प्लस का प्लस रहेगा, साइन 180 - थीटा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो cos 30 आएगा या साइन 60 आएगा, और हमें पता है cos 30 सेम एज साइन 60, आंसर पे कोई फर्क। पहले ओरिजिनल वाले को, चेंज को मत देखो, पहले साइन लगाओ फिर फंक्शन चेंज करो। अगर आपने 270 माइनस थीटा को सोच लिया साइन कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, कोसिकेंट यानी कि रिवर्स ऑफ साइन, हाँ तो वो प्लस में, क्योंकि हाँ प्लस सीकेंट थीटा आएगा। पहले एंगल देखना है, उसका साइन देखना है, उसके बाद वो फिर वैल्यू निकलना है, हाँ फिर नाम चेंज करना है। आप पहले नाम चेंज करोगे फिर उसको ढूंढोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले एंगल देखो, क्या एंगल निकालना है, जिस भी क्वाड्रेंट में है उसके पहले क्या निकालना है, साइन ऑफ 120 है तो अब कन्वर्ट मत करो, पहले देखो 120 कौन से डिग्री में, और फिर देखो साइन वहां क्या होगा, उसके बाद सॉल्व, बाकी सारा जो काम है वो सॉल्व करने का प्रोसेस है। 90 प्लस करोगे तो कॉस में कन्वर्ट होगा, 180 माइनस करोगे तो नहीं होगा, ये बाद की बातें हैं। निकालना क्या था अपने को, ओरिजिनली साइन 120 निकालना था, ना कि कॉस 60 निकालना था। तो इसलिए पहले हमें साइन का ध्यान रखना है, फिर हमें चेंज करना है।
तो मोटी बात क्या समझनी है, 90 या ऑड मल्टीपल ऑफ 90, 90 या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में जब कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगी। साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन, tan will become cot, cot will become tan, secant will become cosecant, cosecant will become secant। उसी तरीके से इवन मल्टीपल ऑफ 90 यानी कि 180, 360 या सीधा सीधा 180 भी कह सकते हो, इवन मल्टीपल ऑफ 90 में जब कुछ जोड़ेंगे और घटाएंगे मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा विल बी सेम एज प्लस माइनस साइन थीटा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा, सीकेंट का सीकेंट रहेगा, कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा, tan का कॉट रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या देखना है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सबसे पहले उसका साइन लगा दो। फिर सॉल्व करने के लिए या तो 180 प्लस माइनस करोगे, या 90 प्लस माइनस करोगे, या 270 प्लस माइनस करोगे, या 360 प्लस माइनस करोगे, यही होएगा। वो हमें पता है कि कहां चेंज करना है और कहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करना है। यश पूछ रहा था मेरे से कुछ। हाँ भाई यश, पल्ले पड़ी बात, क्या कह रहा हूं? यस सर, पड़ गई सर। ठीक है, ओके, ठीक है। आप सोचे थे थोड़ा सा पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा हो गया कचड़ पचड़ कर करके इधर। नहीं नहीं, अब तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का जो है, हाँ एप्लीकेशन ही है, अभी वो करवाऊंगा मैं। लेकिन नहीं, वो आसानी होती है, उसमें tan थीटा याद होना चाहिए बस। 90% क्वेश्चन tan थीटा से निकलते हैं, बाकी विजुअलाइजेशन से। अभी देखता हूँ, बताता हूँ कैसे निकलेगा। हाँ हाँ ले आओ, देखिए, ठीक है। इसके बाद ठीक, हम फीस ज्यादा लेते हैं ना इसलिए। सारी वैसे तो ऐसी बात नहीं है, स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन यही है कि उनका पूरा सेटअप सिस्टम चल रहा है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रिजल्ट्स। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार कोई खाली, ये भी खाली होगा फिर क्या करेंगे? ऐसा नहीं है, पढ़ाते तो हैं ही, थोड़ा सा उस वक्त हम कम समझ पाते हैं, एज का गैप हो जाता है, प्लस सीरियसनेस भी कम होती है, फिर फर्क भी होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ यार, 25,000 मिलते हैं बेचारे को, क्यों उसकी जान ले रहे हो ट्यूशन में नहीं अच्छा पढ़ाता था वो कितना अच्छा पढ़ाता है ट्यूशन में, स्कूल में हाँ तो फिर फिर उसमें हाँ, हाँ तो बस आंसर समझ में आ गया तुमको रीजन समझ में आ गया, ठीक है। चलो उसको आने दो, पहले वेट कर लेते हैं 2 मिनट, नहीं तो वो मिस करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लिंक टूट जाएगा। अभी इसमें 3 चीजें हैं, एक जिसको मैं बोल रहा हूँ कि सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डबल एंगल, हाफ एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जैट के अंदर कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं इसमें से, सिर्फ जैट के अंदर, नॉट ऑल्सो कैट। जैट वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें थोड़ा सम और डिफरेंस आए, उसके अलावा जो हमें करना है वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करना है बस। अभी पढ़ा है बेटा, आधा घंटा तो, आधे घंटे ज्यादा पढ़ा है, देखा कितना स्लो किया है मैंने, कितना एकदम। नहीं वो कुछ तो है, मैं देखता हूँ शायद उसको ना अभी कोऑर्डिनेट का होगा मेरे पास 21 वाला। नहीं नहीं कुछ क्यों, अच्छा होगा उसमें ऐसी क्या बात है। हाँ हाँ लेट अस होप आपके मुंह में घी शक्कर सबको मिठाई खिलाऊंगा
तो ये कह रही कुछ दिनों में भर जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आई मिठाई खिलाऊंगा मैं तुम सबको, भर जाएगा तो। अरे उसको बुलाओ यार, पानी वानी का निकालने गया है। अगर आ गया आ गया आ गया आ गया, चलो ठीक। ओके, अब इसमें मैं पहले आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज करा देता हूं, और फिर जो बचा हुआ है वो तो याद करने वाली बात है। इसके बाद जो इसकी एप्लीकेशन पे आता है क्वेश्चन, उसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बोलते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन आते हैं, हम वो देखते हैं, दैट्स एप्लीकेशन। इसमें एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये आपका विजन है, तो आप अपना मुंह ऊपर करके देख रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ से जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं 30 डिग्री बन रहा है, सो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, मान लेते हैं, एज्यूमिंग कि आपकी हाइट बहुत नॉमिनल है, मिनिमम हाइट है, आप यहां से खड़े देख रहे हैं, तो ये जनरली आपका विजन क्या है, वो इस तरीके से चलता है। आपका विजन कैसे, ऐसे चलता है, ठीक है। ऊपर से जब आप नीचे देखोगे तो इसको, ये वाला जो एंगल है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ इंसिडेंटली अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होती है, तो ये ट्रांसवर्सल होएगी। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज सेम एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज सेम एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये दो टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होती हैं। अब you are standing 45 meters away from the foot of a building, from where you observe the angle of elevation of the top of the building to be 60 degrees. What is the height of the building? There was a tree in the middle of a river. One friend observes the height of the tree from one side of the bank to be 60 degrees, and the other friend observes the tree at an angle of 45 degrees. What is the width of the river? You are flying a kite at an angle of elevation of 60 degrees. The length of the cord used so far is 100 meters. What is the height of the kite? लिखा ही नहीं है क्या? Okay. You are flying a kite at an angle of elevation of 60 degrees. The length of the thread used is 100 meters. What is the height of the kite?
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नाउ इन दीज क्वेश्चंस मेजरली द क्वेश्चन इज अबाउट फर्स्ट मेकिंग द फिगर. Once we are clear with the figure, then the question becomes very easy. There was a tree in the middle of a river. हाँ मतलब टापू, middle of the river का मतलब उसको क्या बोलना चाहिए था? I should have used टापू को क्या बोलते हैं? Island. In the middle of ठीक है, मतलब चलो फीलिंग समझ. तो एक फ्रेंड उसको उसकी टॉप ऑफ द ट्री को ऑब्जर्व करता है एक साइड रिवर के, तो 60 डिग्री है. दूसरा फ्रेंड उसी ट्री को ऑब्जर्व करता है दूसरी साइड ऑफ द रिवर जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है. तो अच्छा, अभी आपको ट्री की हाइट देनी बाकी है. ऐसा हो कैसे सकता है? अच्छा अच्छा सुनो, ये तुम मिडल के चक्कर में मत रहना, समवेयर इन बिटवीन मान लो. हाँ ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी भावना, मैं भी समझ गया. there was a tree. हाँ ठीक है, ये लिख लेते हैं. If it is known that height of tree is 100 feet, ठीक है, एक ये बन सकता है. हाँ हाँ कोई बात नहीं. पहले वाला आंसर आया 45. तो पहले वाला यू आर स्टैंडिंग एट 45 मीटर्स अवे. तो और एक बिल्डिंग से आप दूर खड़े हैं, इसका मतलब क्या है? एक कुछ ऐसी सिचुएशन है, यहाँ एक बिल्डिंग है, आप यहाँ दूर खड़े हैं और यहाँ से आपने बिल्डिंग को ऑब्जर्व किया, यही बात है. तो ये बिल्डिंग है, आप कितनी दूर पे हैं? 45 मीटर्स. यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया कितना? 60 डिग्रीज. और आपको क्या निकालनी है? बिल्डिंग की हाइट. क्या लगाओगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? tan, क्योंकि tan यूजेस ऑपोजिट एंड एडजेसेंट. तो हम लगाएंगे tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. tan 60 की वैल्यू होती है √3. तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 √3. ये मेरा आंसर है पहले वाला. नो प्रॉब्लम, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें ये लगेगा. इसका क्या करें सेकंड वाले का? ये एक ऐसे नदी है, कहीं पे बीच में एक ट्री है, ठीक है. यहां से एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा है इसको, और यहां से बंदा ऑब्जर्व कर रहा है. अब बताओ इसको 60 लूं या इसको 60 लूं? बाय द वे ABC, ऑल्दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लॉजिक पूछना चाहता हूं कि C60 बनेगा B60? सी, क्योंकि जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास जाते जाते एंगल बढ़ता जाता है ना. मान लेते हैं आपको दूर खड़े हो तो बिल्डिंग की हाइट देखने के लिए ज्यादा मुंह नहीं उठाना पड़ेगा. एकदम बिल्डिंग के पास जाओगे तो बिल्डिंग की हाइट देखने के लिए मुंह पर करना पड़ेगा, यानी एंगल बढ़ता जाएगा. तो ये 60 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री. हाइट कितनी दे रखी है? 100 फीट. तो अगर आपको यहां से ये रिवर है, मान लो अपनी रिवर है, ऐसे चल बह रही है, तो ये हमें x है तो ये y है. हमें क्या निकालना है? x प्लस y. क्या फॉर्मूला लगेगा? वंस अगेन tan 45 इज इक्वल टू 100 अपॉन x. tan 45 की वैल्यू x इज इक्वल टू 100. दूसरे में क्या लगेगा? tan 60 इज इक्वल टू 100 अपॉन y. इसकी वैल्यू कितनी है? √3. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 अपॉन √3. तो आंसर आएगा 100 प्लस 100 अपॉन √3, जो भी आएगा सॉल्व करके. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? ठीक है. ये कैसे, इसका क्या करोगे? क्या मतलब है? ये जैसे ये आप पतंग उड़ा रहे हो मान लो, तो पतंग उड़ा रहे हो तो धागा निकलेगा ऐसे ना. यहाँ पे एज्यूम्ड है, क्योंकि धागा नॉर्मली तो एक जब पतंग उड़ाते हैं तो कर्व आता है, बट एज्यूमिंग की वो स्ट्रेट धागा है. कितने फुट निकला? ये 100 मीटर निकला है. अब पतंग की हाइट निकालनी है, यानी ये हाइट निकालनी है. ये हमारा ग्राउंड है, मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, ठीक. और कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है? 60. हमें क्या निकालना है? h. इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन, क्योंकि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज को यूज करने वाला फॉर्मूला है साइन. तो साइन 60 की वैल्यू बनेगी h अपॉन 100. तो साइन 60 बनेगा √3 अपॉन 2. तो h की वैल्यू बनेगी 50 √3. आ रही बात समझ में? अब जब कैट में क्वेश्चंस आएंगे तो वो
कुछ कुछ और इसके अंदर इंटीग्रेट करेगा, कुछ कुछ और इंटीग्रेट करेगा। क्या इंटीग्रेट करेगा? एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन जनरेट करके आपको दे रहा हूं, कोशिश है। क्या कट गई? अच्छा पतंग कट गई, क्यों? फिर से जोड़ूं क्या? देखो यहाँ पतंग उड़ रही है, ये हाइट है, ये धागा निकला हुआ है, यहाँ पतंग है, और अपने हाथ से कितना धागा निकला है? 100 मीटर। तो पतंग का एलिवेशन आ जाएगा। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है 60 डिग्री। आपको निकालनी है पतंग की हाइट कितनी है, तो फॉर्मूला लगेगा साइन। क्यों? क्योंकि एच और हाइपोटेन्यूज को यूज करने वाला रिलेशन कौन सा है? साइन। तो साइन थीटा लगाया, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन में थोड़ा सोच लूं, नहीं तो फिर उल्ट पुल्ट हो जाएगी उसमें भी। ओके A person standing on the top of a 100-meter height building observes a car at an angle of 45 degrees. After 5 minutes, he sees the angle of depression has now become 60 degrees. What is the speed of the car? ठीक है, ये टिपिकल कैट टाइप, मतलब मिक्स मुक्स कर। निकल तो जाएगा ना इससे। सॉल्विंग में दिक्कत है, तुम नहीं करोगे और कौन करेगा? देखा? ये तो सेम ही है, सिंगल ऑफ डेफिनेशन 45 बता रहे हैं, डिप्रेशन दे दिया। ये 45 नहीं होगा, कौन ये 60 नहीं होगा, ये क्यों होगा सर? पक्का? हाँ ठीक है। तो ये 45 ये 60 हम्म। डिस्टेंस निकाल लिया। अभी पहले तो पूरा पेज पूछा था उसमें, इसमें डिफरेंस पूछा इतने से इतने का, तो पूरे में से छोटा माइनस कर दिया। छोटा क्यों माइनस कर दिया? इतने की स्पीड देखनी है ना, इसमें इतनी डिस्टेंस कवर की उसने, हम्म। कि इसकी डिस्टेंस ही आ गई 100 माइनस में से। टाइम 5 मिनट का दे रखा, तो होल डिवाइड। वो बिल्डिंग की हाइट पे खड़ा है ना, तो अपने आप ही वो डिप्रेशन हो जाएगा। वो नहीं, वो जब आप खड़े होके देखोगे ना तो ये साइट होती है, तो जब ऊपर से नीचे देखोगे ना, वो ऊपर से वाले ही एंगल लिया जाता है। पता नहीं, कुछ तो आएगा, मतलब जो भी आए देखते हैं अभी। दिखाओ। सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि किसी ने सॉल्व किया है, किसी ने रैशनलाइज किया है, किसी ने बड़ा बड़ा सा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये पूरा एक्स है, ये वाई है, जो ये वाला ये निकला ये। ठीक है। स्पीड ऑफ द डिस्टेंस वन टाइम वो निकल गई। निकल गया सर। ये 15 क्यों है? 5 था ना? 5। अच्छा 3 कहाँ से है? अच्छा वो वहां से हो। ठीक 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 ठीक। सर पूरा सोल नहीं करा, आंसर तो आ गया लेकिन
एक्चुअली तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, बट वो 99% सेकंड्स में होगा और आंसर जो होगा वो मिनट में दिया होगा पहला ऑप्शन, और उसमें एक यूनिट गलत देगी। इस अगर एक क्वेश्चन आया ना तो 90% बच्चे जो कर लेंगे वो यूनिट्स गलत करेंगे। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 5 थोड़ी ना होगा, 5 into 60 सेकंड। तो मिनट को सेकंड में करने के लिए तो 300 सेकंड हो गए बस। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा बस, सब कुछ कर नहीं, मतलब अगर इमेजिनेशन बन गई क्वेश्चन की फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर लगेगा यही सब tan sin cos यही लगेगा यही, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। बस अगर जैसे हाँ वो भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी वी कैन डू दैट आल्सो, कि आपकी हाइट 1.5 मीटर है और अब आप देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, तो फिर वो हाइट हाँ माइनस करनी पड़ेगी, वो सब कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। ये मान लेते हैं हमारी हाइट है, ये बंदा खड़ा है, ओके तो यहां से एक बंदा फर्स्ट ऑब्जर्व कर रहा है कार को, यहां पे मान लेते हैं, ठीक है। और 5 मिनट के बाद वो, चूंकि देखो एंगल ऑफ जो है 45 से 60 हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टूवर्ड्स बिल्डिंग आ रही है, अवे फ्रॉम बिल्डिंग जा रही है। मान लेते हैं पहले उसने 45 दिया है, बाद में 60 दिया है, तो इसका मतलब इट इज मूविंग टूवर्ड्स बिल्डिंग। लेकिन अगर वो उल्टा कर देता तो हमें ये एज्यूम करना पड़ता है कि इट इज मूविंग अवे फ्रॉम बिल्डिंग। पहली लॉजिक तो यही समझना था, तो हमें पता चल गया पहले 45 है, उसके बाद जब उसने ऑब्जर्व किया तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, ये यहाँ पे 60, एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है ये एंगल, ये इसका साइट है, यहाँ पे देख रहा है। पहले एंगल ऑफ ये 45 डिग्री है और ऑब्वियसली ये वाला एंगल ज्यादा होगा, ये 60 डिग्री है, तो ये 45 तो ये 45, ये 60 तो ये 60। ये 5 मिनट के बाद है, तो पहली फिगर ये बनी है। दूसरी हमें पता है ये हाइट 100। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड। इसकी स्पीड निकालने के लिए मुझे इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। टाइम मेरे को दिया हुआ है, यानी कि मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं, x मान सकता हूँ, ये मुझे पता नहीं, मैं y मान सकता हूँ। तो पहले हम लिखाते हैं tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो आई कैन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। फर्स्ट इक्वेशन यही बनेगी। सेकेंड आई कैन से tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन y, tan 60 की वैल्यू है √3, तो y की वैल्यू होगी 100 अपॉन √3। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 100 माइनस 100 अपॉन √3, which you want to say 100 √3 minus 1 upon √3। ठीक है, दिस इज माय डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 100 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू 5। अब ये जो भी आएगा मेरा मीटर्स पर मिनट आएगा, ध्यान रखना, ये जो मेरा आंसर आएगा मीटर्स पर मिनट, बट बहुत ज्यादा चांस है कि ये मेरा मीटर्स पर सेकंड में दिया होगा। तो 100 इंटू √3 माइनस 1, 5 मिनट कैन बी टेकन एज 5 इंटू 60 सेकेंड। तो ये 0 यहां से जाएगा, ठीक है, 5 2 से जाएगा, तो 2 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, हाँ 2 3 3√3 था ना, बस ठीक है। अब रैशनलाइज करोगे तो ऊपर √3 आएगा, नीचे √3 आएगा, तो नीचे बनेगा 9, ऊपर बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा, यही होगा ना।
So this is your speed in meters per second. That's how it is. ठीक है। उसके बाद एक आधा कुछ मैंने कहीं क्वेश्चन देखा हुआ था कि भाई एक बंदा है वो ना ऐसे हिल पे चढ़ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन पे, फिर इस तरह से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था। तो उस केस में बस हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाइट मारनी पड़ेगी। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन अलग है, मान लो 30 डिग्री है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है अलग है, मान लो 45 डिग्री है। हो सकता है कुछ दिया होगा, बट ऐसा क्वेश्चन था कि वो हिल पे चढ़ रहा था, हिल का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था। तो उस हिल के चलने के बाद एक और दूसरी हिल आ गई, तो वहां उसको नया एंगल ऑफ एलिवेशन लेना पड़ा। तो एक ही चलने के ऊपर दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, झंडा लगा हुआ है। इस झंडे के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अलग है और झंडे के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन अलग है। ये झंडे की हाइट या बेस की हाइट निकालनी पड़ती है। इसको बोलते हैं कि फ्लैग स्टाफ इज सबटेंडिंग एन एंगल। ये भी हो सकता है कि ये एंगल दिया हो अपने को टोटल एंगल की बजाय। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इस टाइप के क्वेश्चंस आप उम्मीद कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कैसे आएगी? आवर विजुअलाइजेशन, आवर एबिलिटी टू फ्रेम दैट इक्वेशन। मतलब मान लेते हैं उसने कहा ये बिल्डिंग है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम बिल्डिंग ऐसे बना रहे हैं, ये हमारा फ्लैग स्टाफ है बोलेगा। ठीक है, अगर हम इसको ग्राउंड से मान लो ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं से, तो वो बोलेगा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्रीज एंड 45 डिग्री। सो आवर अंडरस्टैंडिंग शुड बी कि जब टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप देखोगे वो ये बनेगा, और बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ से जब आप देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ये बनेगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल मान लो 45 डिग्रीज है, ये वाला एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया होगा। और कॉम्प्लेक्स करने के लिए हो सकता है बीच वाला ही दे दे 15 डिग्री, फिर वो साइन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। वेरी रेयर, बट क्योंकि साइन 15 या tan 15 आपको याद नहीं होगा। टेक्निकली मान लो tan 15 हमें नहीं आता, जो 11-12 में पढ़ते हैं उनको वो ऐसे करते हैं इसको, tan 50 को tan 60 - 45 कर सकते हैं। tan 60 कैन बी टेकन एज tan 60 - tan 45 divided by 1 plus tan 60 into tan 45. Now we don't know 15, but we know 60 and we know 45. Using this logic, we can find out tan 15. It is a difference formula. Tan of a minus b का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसे ही sin 15 निकालने के लिए sin of a minus b पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब कोई, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है 60 - 45 लो, आप 45 - 30 भी ले सकते थे। इस केस में तो दिया है, मान लो अपने को sin 15 निकालना है, तो अपन इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, sin 45 - 30। तो sin a cos b माइनस cos a sin b करेंगे। sin a की भी वैल्यू पता है, cos b की भी वैल्यू पता है, sin b की वैल्यू पता है, cos a की वैल्यू पता है, तो फॉर्मूला लगा के लग जाएगा। बट देन दिस गोज ऑन हायर साइड वेयर आई एम सेइंग कि Z के अंदर हो सकता है ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अदर देन दैट यू विल हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जिसमें हाँ ये टाइम एंड डिस्टेंस रेशियोज को घुसा देगा उसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, प्लस बेसिक फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के लगने हैं वो देगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी है योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि वो बिल्डिंग की तरफ आ रहा है दूर जा रहा है, वो बताएगा नहीं, वो आपको समझना है कि एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है, वो इस तरीके से समझाएगा। तो वंस अवर विजुअलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन इज कंप्लीट, 60-70% क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, देन द ओनली थिंग वी नीड टू नो इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ऐसे प्लेन्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि आपने एक प्लेन देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, ठीक है, फिर 15 मिनट के बाद प्लेन देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और मान लेते हैं हमें ये पता है कि प्लेन जो है वो 2 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रहा है, तो प्लेन की स्पीड बताओ। या अगर हमें पता है कि प्लेन की स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है, तो कितनी हाइट पे उड़ रहा होगा। तो उसका मतलब है इमेजिनेशन करना है। कैसे इमेजिनेशन? आप यहाँ हो, ठीक है, मतलब ये हमारा ग्राउंड है, मान लेते हैं कहीं पे प्लेन होगा, मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन प्लेन की है, तो आपने एक एंगल ऑफ एलिवेशन देखा होगा प्लेन का ऐसे, फिर आपने ऑब्जर्व किया कुछ देर के बाद तो प्लेन आगे चला गया होगा ऐसे, और फिर आपने फिर से ऑब्जर्व किया इस प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे। तो पहला एलिवेशन ये है, ठीक है, 60 डिग्री। दूसरा एलिवेशन मान लेते हैं 45 डिग्री। आपको हो सकता है, हमें पता नहीं निकालना क्या हो सकता है, हमें हाइट निकालनी हो, और हमें ये पता होगा कि हमने 10 मिनट के बाद देखा, मान लेते हैं, तो 10 मिनट में प्लेन वुड हैव कवर्ड दिस डिस्टेंस। तो फिर आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले तो, अगर हमें स्पीड निकालनी है तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, हाइट दी गई होगी, कुछ तो एक तो देना ही पड़ेगा।
अगर हमें स्पीड भी दे रखी है, बोला कि ट्रेन जो प्लेन की स्पीड है ना वो 500 किलोमीटर पर आवर है। अब ध्यान से देखना, ये किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट में है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करके ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू निकलेगी। उसके बाद हम इसकी हाइट का रिलेशन निकालेंगे, फिर दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ये वाला बेस का रिलेशन निकालेंगे, फिर जाके हम स्पीड निकालेंगे। यानी एक फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग है एबिलिटी टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू अ पिक्चर फॉर्मेट and then finding out the relevant distances. Once you are able to find out, then Sir? it is whatever speed पूछा है, distance पूछा है, height पूछा है, angle of elevation पूछा है, वो सारे questions हम आराम से solve कर सकते हैं। जो इसमें एक चीज बचती है वो अगर किताब देखोगे तो ये फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले? हाँ, डबल एंगल, एडिशन सब्ट्रैक्शन, हाफ एंगल एंड ट्रिपल एंगल, एंड formulae for changing in product and sum or difference. I would expect you, most of you, to leave this, whoever are not comfortable with typical trigonometry, that's not required. But for others, if you are very strongly about ZAT वगैरह देना है, then you got to remember this. ठीक है? For you, IPM Indore में ask you these questions. Other IIMs will not ask. Rohtak will not, Bodh Gaya will not, Jammu will not, नहीं पूछेंगे। और DU-ZAT के अंदर भी जो एप्टीट्यूड पार्ट है उसमें भी नहीं आएगा, वो जो अलग से मैथमेटिक्स 12th क्लास का है उसमें तो ऑब्वियसली आ सकता है। सो दैट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो आई विल लीव दिस टू यू, बट इफ एट ऑल यू वांट टू लर्न, द प्रायोरिटी वुड बी फर्स्ट यू शुड बी लर्निंग, ये तो मैंने करा दिया है फर्स्ट वाला, फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट है। जो डबल एंगल है ना वो है इंपॉर्टेंट। इन सब में भी अगर हमें कुछ करना है तो जो डबल एंगल है sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा और cot 2 थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और ट्रिपल एंगल में अगर कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए tan 3 थीटा और cot 3 थीटा और sin 3 थीटा cos, उसके क्वेश्चन आते हैं। एसएससी के मेंस एग्जाम में ट्रिपल एंगल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे या फिर जैट में देखने को मिलेंगे। ठीक? For CAT and other, you can limit yourself to double angle. This takes care of your this chapter. ना टिपाने गया था मैं, करा देता। हाँ जी, एक ऑनलाइन। हाँ भाई, ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या? हाँ बोलो। यस सर, जो प्लेन वाला क्वेश्चन है इसमें पहले ट्रायंगल के बेस कैसे निकालेंगे? इसका बेस कैसे निकालेंगे? पहला जो ट्रायंगल नहीं हो उसका बेस, जैसे ये आ जाएगा डिस्टेंस बीच का आ जाएगा 60, tan 60, ये हाइट निकल गई मान लो। हाइट दी होगी कुछ, h है, ये x है, ये y है, कुछ तो दिया होगा ना, एक आधी तो दिया होगा। tan 60 तो is सिर्फ equal y to निकलेगा अगर सिर्फ h upon स्पीड और x. डिस्टेंस दिया तो। tan 45 is equal to h upon x plus y. ठीक है? वो तो ठीक है सर, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया हो तो नहीं निकलेगा। नहीं, इतने में सॉल्व थोड़ा ना होगा, इसमें तो बात ही नहीं बनेगी। इसमें तो 3 वेरिएबल हो गए। यस सर, वही एक डेटा और चाहिए अपने को, या तो हाइट दे दे या ये डिस्टेंस दे दे, यानी y दे दे, कुछ तो एक देगा, इससे बात नहीं बनेगी। सर सिर्फ y देगा तो भी तो निकल जाएगा। y देगा तो h और x में आ गया रिलेशन, h और x में ये रिलेशन आ गया, उनको सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है सर, ठीक है? और तो कुछ नहीं है? नो सर। मुस्कान ठीक है? कैन आई रैप दिस अप? कहाँ खड़े हो गए भाई तुम लोग? बैठो। हाँ, डाउट तो कोई नहीं है, बैठ जा भाई। हाँ जी, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? सम वाला देख लेना फॉर्मूला एक बार, उसमें कुछ समझाने का नहीं, वो रटने का है 1 सेकेंड। जो भी जितना भी समझाने वाला था या जो हमें मतलब लॉजिकली रिक्वायर्ड है वो मैंने मोरलेस आपको करा दिया। इनवर्स कहाँ आना यार? बस डबल एंगल में याद रखना sin 2 थीटा का क्या मतलब है,2 sin थीटा cos थीटा, वो याद होना चाहिए। sin 2 थीटा यानी sin 60 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 sin 30 cos 30, इसका ये मतलब होता है। जैसे sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा को सॉल्व करने के लिए इसको हम करते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है?
मान लेते हैं मेरे को साइन 60 नहीं याद है, एक मिनट समझाने के लिए। साइन 60 कैन बी रिटन एज साइन 2 into 30, उसको सॉल्व करेगा 2 sin 30 into cos 30, इसको ऐसे साइन 2 थीटा। ऐसे ही मेरे पास cos 2 थीटा दिया हुआ है, तो cos 2 थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। ऐसे ही tan 2 थीटा है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बस ये वाले फॉर्मूले हैं। नहीं, डबल वगैरह तो शायद 11th 12th में आता है, 11th। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ 10th जो सिलेबस है सारे मैनेजमेंट में 10th तक का है ना, क्योंकि सबने तो 11th 12th में मैथ्स पढ़ी नहीं है। हाँ तो फिर 11th में रहा पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और कुछ?